रिकॉर्ड में नहीं है। आपको इजाजत नहीं है। डिमांड फॉर ग्रांट जो है रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इस पे कल माननीय मंत्री जी प्रश्नकाल के बाद जवाब देंगे। अभी शून्यकाल और राजीव रंजन सिंह जी शून्यकाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बेटे बेटे आज के बाद मत बोलना। अध्यक्ष महोदय, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अवसर दिया। महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर आप ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं सरकार का, और जो रोजगार से जुड़ा हुआ है और बेरोजगारों की समस्या के साथ जुड़ा हुआ है। महोदय, रेलवे में एक परंपरा रही है बहुत पहले से कि अप्रेंटिस की ट्रेनिंग दी जाती थी और ट्रेंड अप्रेंटिस को रेलवे समायोजित करती थी स्किल टेस्ट के आधार पर। कई वर्षों से यह परंपरा बंद है और अलग अलग जोन में जो रेलवे के जोन है, वहां के जोनल मैनेजर्स अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ लोगों को बहाल कर लेते हैं और कुछ लोगों को छोड़ देते हैं। आज की तारीख में लगभग लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार बाहर हैं। मैं ये सरकार से मांग करता हूं, और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 8,500 नौजवान स्किल्ड हैं, ट्रेंड हैं और आज सड़क पर बेरोजगार की तलाश में हैं। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से ये मांग करता हूं, यह आग्रह करता हूं कि एक रेलवे के केंद्रीय स्तर पर एक नीति तैयार करें और नीति तैयार करके जो ट्रेंड अप्रेंटिस है उनके स्किल टेस्ट के आधार पर विभिन्न रेलवे के जोन्स में बराबर ढंग से सबों को समायोजित करें, उनको उसमें नियोजन की प्रक्रिया हो ताकि उनको रोजगार मिल सके, यह आग्रह करता हूं। और वैकेंसी है लगभग 1.5 लाख और लाखों की संख्या में बेरोजगार हैं, तो इसलिए मैं सुदीप दा का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दिया। Sir, my issue is today in connection with the medical students of India forced to leave Ukraine. I met Honorable Prime Minister today at his office and submitted a memorandum. Just I want a permission from you to read for 2 minutes. Our Chief Minister is writing to the Prime Minister that, respected Prime Minister, you are aware that due to sudden war between Russia and Ukraine, a large number of students are forced to leave Ukraine. Due to, sir, only proportion. Due to imminent danger and threat to their lives, majority of these students were pursuing MBBS course at different years in Ukraine. Till date, 391 such students only from West Bengal and thousands from India have returned back. It is a very crucial issue, sir. Government of any state, including West Bengal, is highly sensitive to their problems, and all governments have ensured that all students belonging to their states return back safely to their homes. Sir, as medical education in the country is regulated by National Medical Commission, the following suggestions are being placed for kind urgent consideration. I have placed it to the Honorable Prime Minister also today. As per the current guidelines of NMC, students who are eligible for the internship will be allowed to undergo the internship in government medical colleges of the state, and they will be also paid to the stipend at par with the other candidates. For other students in different years of the studies, they may be allowed to get admitted at the equivalent level in the private medical colleges against the existing seats, and these medical colleges may be allowed to increase equivalent number of seats for accommodating these students. Sir, the private medical colleges of the state governments should agree to accommodate these students as West Bengal has done it at state quota fees. Government of West Bengal has also decided to extend financial assistance to those students to meet the expenses on their course fees. Sir, this is an unprecedented war
situation which calls for an extraordinary solution. Hence, I request you for your kind urgent intervention. I also request you that as the students who have returned to other states are facing similar problems, the steps that may be taken by National Medical Council be implemented for other states as well. Mamata Banerjee. Sir, Honorable Prime Minister replied me that this letter carries major importance, but he assured that he had a discussion with the Hungarian government, and if possible, all the students may be accommodated to Hungary. So we here are, all the state governments should remain equally concerned. If Hungary fails to accommodate all students, then the state government should come up and see that students get everybody admitted into their respective states or can be admitted to other states, as Prime Minister suggested in Hungary at an early possible date. Thank you. सदन का समय शून्यकाल तक बढ़ाया जाता है। मणिकम टेगोर जी। Sir, வணக்கம் அவைத்தலைவர் அவர்களே, சிவகாசி பட்டாசு தொழில் 100 ஆண்டுகள் பழமைமிக்க தொழில். இந்த தொழில் 10 லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கிறது. மோடி அரசு வந்ததிலிருந்து இந்த தொழிலுக்கு பல தடைகள் சந்தித்து வருகிறது. இந்த தொழிலை பொறுத்தமட்டிலே சாதாரண பட்டாசை தயாரிப்பதில் இருக்கின்ற தர்ம சங்கடங்களையும் அரசு அதிகாரிகள் கொடுக்கின்ற தொல்லைகளும் அதிகரித்துக் கொண்டே வருகின்றன. இந்த அரசு இந்த தொழில் அதானியாலும் அம்பானியாலும் நடத்தப்படவில்லை என்றாலும் சாதாரண தொழிலதிபர்களால் நடத்தப்படுகின்ற தொழிலாகும். இந்த தொழிலுக்கு தொடர்ந்து தடைகள் விதிக்கப்பட்டு வருவதனுடைய விளைவாக இந்த தொழில் பல வகையிலே பிரச்சனைகளை சந்தித்து வருகிறது. அவைத்தலைவர் மூலம் தொழில் அமைச்சரிடம் என்னுடைய கோரிக்கை என்னவென்றால், சிவகாசி பட்டாசு தொழில் இப்பொழுது வேலை நிறுத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. 10 லட்சம் பேர் வேலை இழந்திருக்கிறார்கள். இந்த நிலையிலே அவர்களுடைய வேலைவாய்ப்பை காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் மத்திய தொழில்துறை அமைச்சர் இதில் தலையிட்டு உடனடியாக அந்த தொழில் செய்பவர்களோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அந்த தொழிலை தொடங்குவதற்கு நீங்கள் உதவ வேண்டும் என்பதை கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। चर्चा के क्रम में जो बातचीत हुई, क्या है कि इसका रिपरकशन काफी है सर। मैंने अपने भाषण के क्रम में ये कहा कि आज चाइना जो है हमारे मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और हमारी पूरी जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो उसी के बचाव में लगी हुई है और इसलिए ज्यादा बजट का जो खर्चा है हम चाइना पर लगा रहे हैं। उसका कारण यह था कि अंग्रेजों ने सुगौली से लेकर कई एक एग्रीमेंट किए, जिसमें कि नेपाल, भूटान और तिब्बत के साथ जो ऐसा एग्रीमेंट हुआ जिसमें वो बफर स्टेट थे, और बफर स्टेट होने के कारण कोई भी बॉर्डर हमारा चाइना के साथ नहीं जुड़ता था। ठीक वही स्थिति यूएसएसआर की है कि उसने जब पेरोस्ट्राइका और ग्लासनोस्ट के बाद अलग अलग कंट्री को अलग किया तो यूक्रेन के साथ भी उसका एक एग्रीमेंट हुआ कि नाटो का वो कभी मेंबर नहीं बनेगा। उसने भारत की स्थिति को देखा और देखा कि तिब्बत के साथ हो जाने के बाद, चाइना के साथ हो जाने के बाद भारत रोज मर रहा है। आप समझिए कि पंचशील के बाद 1955 के बाद से आज लगभग 60-65 साल से भारत रोज चाइना से लड़ रहा है और इस कारण से हम अहिंसावादी हैं। भारत सरकार जो है हिंसा का विरोध करती है। बस एक मिनट सर, लेकिन जो यूक्रेन में हो रहा है उसमें आप रूस को बहुत गलत नहीं ठहरा सकते। और एक संस्कृत का श्लोक है सर कि आपदा मा पतंती नांग हितोप्यायाति हेतुताम मातृजंगा ही वत्सस्य अस्तम भवति बंधने। यदि विपत्ति आ रही हो और सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो तो माता का जो गाय माता का जो जंगा है वही बछड़े का जो है प्रोटेक्शन हो जाता है। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है, मैंने ये बातें कही थी, ये सेटल होना चाहिए और इसका मैसेज खराब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भारत के विदेश नीति का सवाल है सर। और मैंने व्यक्तिगत कैपेसिटी में ये बात कही थी, न कि भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर ये बात कही थी। महाबली सिंह जी, सबको मौका मिलेगा, उनको मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, सहारा इंडिया परिवार की नॉन बैंकिंग जो पारा बैंकिंग डिजिटल द्वारा करीब 5 साल से अपने खाताधारियों को वो भुगतान नहीं कर रहा है महोदय, जिसके चलते
भारत के कई राज्यों में सहारा के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। उसमें महोदय 1 करोड़ों लोग जो सहारा के खाताधारी हैं वो गरीब परिवार से गरीब लोग हैं। वो अपने छोटे मोटे कमाई से बचत करके उन्होंने पैसा जमा किया था और उन लोगों को भुगतान नहीं हो रहा है, जिसके चलते महोदय लोग आत्महत्या करने पर उतारू हो गए हैं। इसलिए महोदय हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं, जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि उनका भुगतान किया जाए, इसके बाद सेबी के पास 24,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन जो सहारा के खाताधारी हैं आज पैसे के अभाव में दर-दर भटक रहे हैं और आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि उन खाताधारियों को महोदय जल्द से जल्द भुगतान कराया जाए। राम्या हरिदास। Thank you, Speaker Sir. I would like to bring the attention of this House to the atrocities of Kerala government and police against women and children in Kerala as part of the protest against Kerala. Really, this Kerala project is in its initial stage, and as the Railway Minister said in Parliament, the Union government did not give sanction to the project. The Kerala government claims land of helpless to put survey stones, as if they got final sanction for this project. Even the Union government did not blow green flag to this project. The state government strongly announced the project will be implemented. Enormity of police against women protesters should be blamed. Police has misbehaved to women and aged fellows and has registered cases against protesters. I request here the Union government should clarify the sanction of Kerala project, and if the sanction is not given, central government should order Kerala government to stop survey. And Union government and the Human Rights Commission have to interfere to end atrocities against women and children. Thank you, sir. Asauddin Owaisi ji, Ganesh Singh ji. प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में देश के खिलाड़ियों को तैयार करने हेतु खिलाड़ियों के लिए खेलो इंडिया खेलों का जो एक कार्यक्रम शुरू किया है, उसका असर अब बहुत तेज गति से दिखाई देने लगा है। पूर्वोत्तर के राज्य में खेल विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय खोले गए हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं खेल मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं मध्य प्रदेश राज्य से आता हूँ, वहाँ भी खेलों की बड़ी संख्या में प्रतिभाएं मौजूद है, किंतु प्रशिक्षण का अभाव है। मैं अपने क्षेत्र सतना में विभिन्न खेलों की सांसद खेल ट्रॉफी 2013 से लगातार करा रहा हूँ। चालू वर्ष में अभी 12 फरवरी से 25 फरवरी 2022 के बीच 703 टीमों के क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो के 7,500 खिलाड़ियों ने अपने खेल का बेहतर प्रदर्शन किया था। उसमें कई प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान भी की गई। उनके प्रशिक्षण हेतु लगातार मैं खेल महाविद्यालय या साई प्रशिक्षण केंद्र अथवा अन्य कोई प्रशिक्षण केंद्र खोलने की मांग करता रहा हूँ, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों में मेरा क्षेत्र और प्रदेश अपनी जिम्मेदारी दे सके। अभी हमने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नाम से एक स्टेडियम पावर ग्रिड के सहयोग से बनाया है, जिसमें सभी तरह के खेलों का आयोजन कराया जा सकता है। पूर्व सांसद दादा सुखेंद्र सिंह स्टेडियम, धवादी क्रिकेट स्टेडियम को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से आधुनिकीकरण कर रहे हैं। साथ ही ओलंपिक नाम पर 35 करोड़ की लागत से एक मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बना रहे हैं। इसलिए सतना को राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण अवश्य दिया जाए, ताकि हम खेल प्रतिभाओं को प्रशिक्षण दे करके उनको अच्छे खिलाड़ी के रूप में आगे भेज सकें। धन्यवाद। आदिर रंजन चौधरी जी। सर, मैं एक मुद्दा उठाना चाहते हैं सर। 1990 सरकार वीपी सिंह जी की 85 बीजेपी की संसद के समर्थन में चल रहे थे। कश्मीर घाटी के राज्यपाल जगमोहन जी उस समय कह दिया कश्मीर घाटी के लोगों को, खासकर पंडितों को और सिखों को, कि हम बचा नहीं पाएंगे, अब चले जाओ। इसलिए पलायन शुरू हो गए, क्योंकि हुआ जो आतंकवादी जो जिहादिस्ट थे, ये मौका लेते हुए सारे पंडितों को खिलाफ, सारे सिखों भाइयों बहनों के खिलाफ अत्याचार शुरू कर दिए। और आप मान सकते हैं कि ये एक जातीय संहार के रूप से हम जरूर देख सकते हैं। लेकिन उस समय सरकार में
काबिज रहे वीपी सिंह, उनकी समर्थन बीजेपी पार्टी। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा शुरू हुई और रथ यात्रा की उस समय में हमारे पीएम साहब मोदी जी इस रथ यात्रा की इवेंट मैनेजर बने, संचालक बने। सर उस समय विरोधी पक्ष के नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ये पलायन के खिलाफ आवाज उठाते हुए सरकार को चेताया कि इस तरीके के पलायन रोका जाए। इस तरह की पलायन हिंदुस्तान के लोग नहीं मानेगा। वो हमारे ब्राह्मण पंडित भाइयों बहन कुमचंदानी ममूर, राजीव गांधी ने गवर्नर बनाया था 1984 से लेकर 1989 तक जनमोहन गवर्नर थे। कुमारी चंदानु मुर्मू, हमने गवर्नर नहीं बनाया, हमने उनको 19 जनवरी 1990 को गवर्नर बनाया। कुमारी चंद्र मुर्मू नो, कुमारी चंदानु मुर्मू, M. Selvaraj. Sir, in my constituency, on Tiruthirai-Pundi Agasthyambadi railway route is not operations. In this railway route, the government has identified many places to construct low underbridge. One Ramakrishnapuram, Naivilakku, Sandaithopu, Arkatturai, Kollithivu, etc. and closed the roads for construction of low underbridge many months ago. But actually, the work has not been started. People of this area facing lot of this hardship in day-to-day life for easy movement for the local places. Hence, I request the government through you, sir, to initiate the immediate steps to run the railway in this route as well as complete the low underbridge quickly. Thank you, sir. Sri K. Gorantalla Madhav. Thank you, Speaker, sir. Through you, I am asking the Government of India. The Staff Selection Commission, General Duty SSC GD had notified 60,000 plus constable vacancies in the year 2018 for those aged 18-23 years. Till date, SSC GD 2018 appointment letters have not been issued to the selected candidates. The candidates who persisted through the endurance and long-drawn process are now being forced to protest at Jantar Mantar. It is expensive for both the candidates and recruiting agencies to drag the recruitment process. It is high time the government acts on this issue with an immediate effect and make sure all the recruitment agencies work timely and complete process of recruitment on regular basis in similar line with the UPSC. This will help both the candidate and the agencies, sir. Thank you. Sri Kotagiri Sridharji. Sir, palm oil is the major source of edible oil in India. Government of India has decided in the last couple of years to increase cultivatable area and has allocated new areas in new states as well. But suddenly, there is a huge shortage of plant material and seed development. I request Ministry of Agriculture, through you, sir, to allocate enough funds or enough budget to Indian Institute of Oil Palm Research for fresh seed development and also speed up necessary import licenses for all the concerned companies to import seed and plant material to make available for the next season in June. Thank you, sir. Sri Rang Appa Barne, Sri Rahul Kaswa. महोदय, देश के आवासीन ग्रामीण जन को लाभ देने के लिए भारत सरकार द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम आवास योजना का बेहतरीन एक प्रोग्राम चलाया गया, जिसका एक डेडिकेटेड टाइम फ्रेम है कि 2024 तक इस देश के अंदर हर प्रत्येक व्यक्ति के सर पर एक छत होनी चाहिए। इस प्रोग्राम के तहत बहुत बड़े पैमाने पर मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर भी नए घर बने हैं।
बदलते हुए माहौल टाइम के साथ साथ में जो इसकी आवास की एक जो राशि सरकार देती है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय देता है, 1.5 लाख के लगभग देता है, और इस 1.5 लाख की राशि के अंदर मकान बनने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। मैं आपके द्वारा इस ग्रामीण विकास मंत्रालय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस राशि को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया जाए, और साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, पीएम आवास योजना की पीएम आवास ऐप के ऊपर जो डेटा चढ़ाए गए, 2018 के अंदर राजस्थान की जो सूची बनी थी, 30,000 के लगभग पात्र व्यक्ति थे। उस सूची को कांग्रेस की सरकार आने के बाद में काफी हमारे लोगों के नाम काटे गए। मेरा सरकार से भी निवेदन रहेगा कि इस सूची के अंदर दोबारा से जो रिवाइज किया जाए और प्रधानमंत्री आवास ऐप के ऊपर जो बचे हुए लोगों के नाम कटे उनको दिया जाए। साथ ही साथ में सर, राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रदेश है, एक कैटेगरी जिसमें आइडेंटिफिकेशन है पीएम आवास के अंदर कि केसीसी धारक के अगर 50,000 रुपए का भी अगर उसने केसीसी बनाई हुई है तो उसको उसका वंचित किया जाता है। सर अध्यक्ष महोदय, मैं 1 मिनट समय लूंगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान जैसे बड़े स्टेट के अंदर लैंड होल्डिंग बहुत ज्यादा है, ये 50,000 रुपए की जो केसीसी का जो प्रावधान है इसको हटाना चाहिए ताकि और लोगों को इसका लाभ मिल सके। गांवों के अंदर खेतों की जमीन ज्यादा होती है पर लोगों के पास अभी भी मकान नहीं है। ये एक पॉइंट को हटाने से काफी लोगों को इसका लाभ मिलेगा, और मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो 6200 रुपए का टारगेट दिया गया है नए मकान बनाने का, उन टारगेट को बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी भी आज तारीख में 40,000 से ऊपर ऐसे लोग हैं जिनको आवास मिलने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एन.के. प्रेमचंद्रन जी। Thank you very much, sir. Sir, my surrover submission is in respect of compassionate appointment in IRE Limited Chavara. Sir, Indian Rare Earth Limited is one of the prestigious organization of Department of Atomic Energy. And in my constituency, Chavara plant, it has started since long. But it is quite unfortunate to note that the compassionate appointment is not being allowed. From 1990 onwards, there is no appointment in IRE Chavara plant. Sir, you may kindly see the application submitted for employment under the compassionate scheme was pending for the last 12 years. And further, the surviving members of the family are starving. The situation of the family members of the deceased are very, very pathetic. The appointments are delayed and denied only because of the disregard of the IRE management. So it is highly necessary to expedite the process of compassionate appointment of various categories of workers of IRE Limited Chavara, such as permanent workers, civil workers, bagging workers and loading workers. Sir, you may kindly see in the year 1999, there were 761 permanent workers were there in IRE establishment Chavara. Now it has come down to 136 workers. Even after this, the compassionate appointment is not being allowed, means it is totally an anti-labor approach taken by the IRE management and the Department of Atomic Energy. Therefore, the rules and the guidelines have to be changed. And the settlement and execution of the long-term agreement of the cooperative society employees is also pending. So, sir, I urge upon the government of India, in particular the Department of Atomic Energy and also the IRE management, to take urgent action for the appointment of the dependents of the workers of IRE Chavara, permanent plant workers, bagging workers, loading workers and civil workers on service under the compassionate employment scheme, and initiate action for the long-term agreement for the cooperative society, that is canteen of IRE Limited Chavara. Thank you very much, sir. श्री दानिश अली जी। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष महोदय। आपका लोटरी में था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने के लिए आपने मुझे मौका दिया। अभी पिछले दिनों दिल्ली के अंदर गोकुलपुरी में झुग्गी झोपड़ियां जल गई थी, 7 लोगों की जान गई, और सरकार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री आवास योजना का चल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है, चिराग तले अंधेरा। जहां हम बैठे हैं, मेरी जानकारी में पिछले दिनों यहाँ पर नई दिल्ली के अंदर ही गोल मार्केट में महावीर लेन के अंदर कुछ झुग्गियां थीं, उनको पुलिस के द्वारा उजाड़ा गया, जबकि उनके पास मीटर कनेक्शन था, वाटर का कनेक्शन था। और मतलब फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, नहीं, अब वो मैं ये आप जाने कि दिल्ली सरकार ने कराया है, केंद्र सरकार ने कराया, चलो वो दिल्ली सरकार ने कराया होगा, लेकिन सेंट्रल विस्टा जहां बन रहा है, यहां भी भेलपुरी बेचने वाले 25 साल से मैं देखता हूं कि यहां भी कुछ झुग्गियां थी, उनको भी पुलिस ने उजाड़ा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये कहना चाहूंगा कि 2016 तक का जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है, झुग्गी झोपड़ियों को रिहेबिलिटेट करने की, उस पॉलिसी का, उन नीतियों
झुग्गियों का उल्लंघन हुआ है उसकी जिम्मेदारी जिसकी है वो उनको जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। ऐसे झुग्गियों को ना उजाड़ा जाए, उनको जो है वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी। श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी, विनायक भावराव रावत, सुशील कुमार सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं इस सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से देश हित में भारत सरकार से एक सुझाव देते हुए मांग रखना चाहता हूं। महोदय, भवन निर्माण सामग्रियां जो हैं, जो मुख्य सामग्रियां हैं भवन निर्माण की और साथ साथ अन्य निर्माण की भी, जैसे उसमें सीमेंट है, लोहा है, लोहा में हर तरह का लोहा है, वो सरिया भी है, एंगल भी है, चैनल भी है, बालू है, सैंड है, गिट्टी यानी स्टोन चिप्स है और ईंट। इन सारी चीजों की कीमत तय करने के लिए अभी तक कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। इस देश में कृषि उत्पाद का मूल्य तय करने के लिए कृषि मूल्य आयोग है। इस देश के अंदर टेलीफोन का दर तय करने के लिए TRAI है। इस देश के अंदर बिजली की दरों को भी तय करने के लिए नियामक है, लेकिन भवन निर्माण सामग्रियों के कीमत को तय करने के लिए कोई नियामक, कोई अथॉरिटी नहीं है। महोदय, इसका सीधा सीधा असर प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीबों के लिए है, बेघरों के लिए आवास की योजना है, साथ साथ हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए सस्ते मकान की योजना शुरू की है। इसके अतिरिक्त अभी अभी चल रहा था भूतल परिवहन मंत्रालय के अनुदान मांग पर बहस। तो जो सड़कें हैं, कंक्रीट सड़कें हों या बाकी भी सड़कें हों, पुलों के निर्माण पर इन चीजों की कीमत नियंत्रित नहीं होने के कारण बेतहाशा इसमें मनमाने तरीके से वृद्धि होती है, तो देश के खजाने को भी नुकसान होता है। साथ साथ जो देश के गरीब हैं, जिनके लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की है, और अभी एक सदस्य कह रहे थे 1.5 लाख रुपए से इसको बढ़ाना चाहिए। कारण यही है महोदय कि 1.5 लाख रुपए में इतना महंगा ये सामग्रियां हैं कि उनका घर अच्छे तरीके से नहीं बन पाता। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से ये मांग करना चाहता हूं, और ये मांग मैंने एक बार पहले भी 28 मार्च 2017 को भी इस सदन में रखा था कि इन सामग्रियों, भवन निर्माण सामग्रियों के कीमत को तय करने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होना चाहिए इस देश के अंदर, ताकि देश के खजाने को की भी बचत हो सके और देश के गरीबों को इसका लाभ मिल सके। एक गणेश मूर्ति। நன்றி சார். 2010ஆம் ஆண்டு முதல் மத்திய உயிரியல் பூங்கா சென்ட்ரல் ஜூ அத்தாரிட்டி வழங்கிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி மருந்துகள் தயாரிப்பதற்கு உதிர்ந்த மான்கொம்புகளை வழங்குவதை வனத்துறை நிறுத்திவிட்டது. இவ்வாறு வீணாகும் உதிர்ந்த மான்கொம்புகளை மனித உயிர்களை பாதுகாக்கும் மருந்துகள் தயாரித்திட தங்களுக்கு வழங்குமாறு பல்வேறு இந்திய துறை மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளன. தற்பொழுது மத்திய அரசு வன உயிர் பாதுகாப்பு சட்டம் 1972 சில திருத்தங்களை மேற்கொள்ள வரைவு மசோதா தயாரித்து அது பாராளுமன்ற சுற்றுச்சூழல், காடுகள் மற்றும் பருவநிலைத்துறைக்கான நிலைக்குழுவிற்கு அனுப்பியுள்ளதாக அறிகிறேன். இந்த திருத்த மசோதாவில் பாம்பு விஷம் மற்றும் மயில் தொகை பயன்பாடு மற்றும் சில விஷயங்கள் குறித்து அரசு சில திருத்தங்களை கொண்டு வந்ததாக அறிகிறேன். அதே சமயம் மனித உயிரை காக்கும் மருந்துகளை தயாரித்திட உதவும் தானாக உதிர்ந்த மான்கொம்புகளை மருந்து தயாரிப்பிற்கு வழங்குவதற்கு குறித்த எவ்வித உத்தேச திருத்தம் அரசால் நிலைக்குழுவிற்கு பரிந்துரைக்கப்படவில்லை என்று அறிகிறேன். எனவே இயற்கையாக மற்றும் தானாகவே விழுந்து வீணாக போகும் மான்கொம்பினை மனித உயிர்களை காத்திடும் உயிராக்கும் மருந்துகளை தயாரித்திட வன உயிரினங்கள் பாதுகாப்பு சட்டம் 1972 உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள திருத்தங்களில் கீழ்கண்ட திருத்தலை நிலைக்குழுவின் பரிசீலனைக்கு அரசு பரிந்துரைக்க வேண்டும் என்று மாண்புமிகு நாடாளுமன்ற சபாநாயகராக உங்களின் வழியே சுற்றுச்சூழல், காடுகள் மற்றும் பருவநிலைத்துறைக்கான அமைச்சர் அவர்களை வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். Please insert in section 12 of the Wildlife Protection Act 1972 as follows: E. Shedded deer antler from zoo
for manufacturing of saving drugs, life-saving drugs. இதன் மூலம் உயிர்காக்கும் மருந்துகளை தயாரித்து அதன் வழியே லட்சக்கணக்கான மக்களின் உயிர்களை காத்திட உதவும் நிலையை அரசு உருவாக்கிட வேண்டும் என்று தாழ்மையுடன் தங்கள் மூலம் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. Rajmohan Unnithan. Thank you very much, Speaker Sir. My constituency, Kasaragod, has been languishing for the last few years from the disastrous effect of endosulfan pesticide. The endosulfan was sprayed over the cashew plantation in the district for 23 years since 1978. Sir, it has ruined 30 village panchayats and 3 municipal towns in the district. As per the Supreme Court directive, 6,727 persons were identified as the victims of endosulfan. The National Human Rights Commission directed to pay rupees 5 lakh each to the dead and the living victims in 2010. The Supreme Court in 2017 and 2021 reiterated the same direction, but out of the 6,727 victims, 4,200 victims have not received any compensation till date. There are no adequate medical facilities in the district to treat these hapless people. There are special schools called bud schools for catering the needs of the children who mentally retarded due to endosulfan. But these schools are handicapped by inadequacy of infrastructure and teachers. There is no any comprehensive plan for the rehabilitation of endosulfan victims. Sir, hence I request the Government of India to look into the grievances of the endosulfan victims to find out an expeditious solution and give direction to the Government of Kerala to obey the verdict of the Supreme Court. Thank you very much, sir. Sunil Babu Rao. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान मेरा क्षेत्र भंडारा की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जो सबसे पुराना जिला होने के बावजूद अभी तक वहां एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना है और जहां तक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत फेज 3 के अंतर्गत हमारे भारत सरकार का ऐसा मानना था कि सभी जिला स्थान पर कम से कम एक मेडिकल कॉलेज हो। जहां तक छोटे मरीजों को और बाकी की बात है, इनको सभी काम के लिए नागपुर जैसे शहर जाना पड़ता है, जिससे काफी समय और पैसा भी ज्यादा खर्च होता है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार को ये निर्देश देने के लिए कहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार को भंडारा जिले के लिए मेडिकल कॉलेज के लिए जल्द से जल्द डीपीआर बनाने का निर्देश दे, जिससे कि आगे की कार्रवाई हो सके और जिससे कि तहत भंडारा जिले में मेडिकल कॉलेज हो सके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री राजीव प्रताप रूडी। आपका हम लोग विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहेंगे। धन्यवाद देता हूं कि आपने पार्लियामेंट में इतनी अच्छी व्यवस्था कायम की है कि आज हमें कागज, मुझे याद है वो दिन जब हम लोग टेबल ऑफिस में आके कागज में हस्ताक्षर करके नोटिस देते थे और दौड़ते दौड़ते आते थे, लाइन लगाते थे। आपने ऐसी व्यवस्था की है कि ऑनलाइन हम लोगों ने पूरा इस बार का, और ये भी लॉटरी में जो आया है, ये महोदय मैं ऑनलाइन जाकर के मैंने अपनी लॉटरी में स्थान प्राप्त किया है। लेकिन सर, ये एक मेरे लिए बड़ा चिंता का है, और मैं तो बिहार से आता हूं, 12 करोड़ की आबादी है और देश की सरकार बहुत कुछ कर रही है, और आज हम लोगों ने तय किया कि देश के 6 लाख गांवों तक इंटरनेट पहुंचाएंगे। और जो ये अवकाश के पीरियड में मैं अपने गांव पर था, मूलतः मैं अपने गांव पर ही रहता हूं, और वहां से मैंने कोशिश किया, मैं गांव पर ही रहता हूं अध्यक्ष जी, आप भी जानते हैं मैं गांव पर रहता हूं। मैं पूरे इस दौरान अध्यक्ष जी, ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा हूं, अमनौर में आप भी गए हैं और अध्यक्ष भी गए हैं, और सारण जिला का है, मैं वहां पर था, और मेरी इच्छा होती है कि जब मैं गांव पे रहूं कि जो दिल्ली के कनॉट प्लेस में जो लोगों को मिलता है वो मेरे गांव में मिले, मेरे गांव में मिलेगा तो मेरे जिला में मिलेगा, देश में मिलेगा। और साहब, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं 15 दिन में 10 दिन वहां था, और 10 दिन लगातार, और मैं आपको रिकॉर्ड भी पेश करूंगा कि मैंने इंटरनेट सुविधा के लिए वहां से आवेदन डाला, और मैं प्रत्येक दिन इंटरनेट जो गिरा रहता था, वाईफाई जो चौपाल सीएससी गिरा डाउन रहता था, उसका मैं स्नैपशॉट लेकर के मैंने भारत सरकार में भेजा। और आप विश्वास नहीं करेंगे, नहीं उसमें गड़बड़ी कहां हुई है अध्यक्ष महोदय, और मैं आपसे संरक्षण सिर्फ एक बात नहीं, एक भारत सरकार में अगर बीएसएनएल है तो उसको डांट करके हम बुलाते हैं, उससे बात करते हैं, उस सरकार के कर्मचारी है। बीबीएनएल है तो उसको बुला करके हम लोग डांट करके बात करते हैं कि भैया ये तार क्यों नहीं काम कर रहा, वो सरकार का है, हमारी सिंपैथी, हम लोग उसकी मदद करते हैं।
2006 में भारत की सरकार ने एक नया चीज बना दिया जो हम लोगों को समझ में नहीं आया और आज हम लोगों के लिए वो जख्म बना हुआ है, और वो है सीएससी। और ये सीएससी एक ऐसी संस्था है जो स्पेशल पर्पस व्हीकल भारत सरकार में क्यों बनाया गया? जब बीएसएनएल था, बीबीएनएल था, सीएससी क्यों बनाया गया? और सीएससी को फिर बाद में स्पेशल अरेंजमेंट के तहत उसे पूरे भारतवर्ष में लास्ट माइल कनेक्टिविटी की जिम्मेवारी दे दी गई। अब वो आप दिशा की बैठक कर ले अध्यक्ष जी, आप जिला की बैठक कर ले, आप राज्य की बैठक कर ले, ये सीएससी वाले जिनको करोड़ों रुपया दिया गया था वो एक बैठक में नहीं आते हैं क्योंकि वो प्राइवेट है और उसको पूरा पैसा दिया गया, ये प्राइवेट है। वो कहता है कि मुझे क्या आपसे काम है, मुझे तो सरकार ने दिया है। साहब हम लोग, मेरा आपसे ये अनुरोध है, मैं बिहार में जानता हूं और उसी को दिया जाता है कि ग्रामीण में सीएससी सेंटर के लिए उसके पास आप एप्लीकेशन डलवा दीजिए, बैंक के अकाउंट के नाम पर रिजेक्ट कर देगा। ये प्राइवेट व्यक्ति कौन है अध्यक्ष जी? और मैंने मंत्री जी से मुलाकात की, मैं भारत की सरकार और मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री का। उन्होंने कहा है कि ये सीएससी को बंद करो। ये जितने ज्यादा बीच में जो सिस्टम बने हैं जिससे बदनामी होती है, प्राइवेट जिसका कोई लेना देना नहीं है हम लोगों से, वो पूरे भारत के 6 लाख गांवों में लगा रहा है और उस पर कोई कंट्रोल नहीं। और बिहार के जो अधिकारी हैं, मुझे तो आप लोगों की सदन की ताकत से मैं बिहार के किसी अधिकारी के साथ बैठक कर सकता हूं, लेकिन बिहार के में अधिकारी और मेरे कहने के बाद भी हमारे जैसे व्यक्ति का, सीएससी का एक आदमी पिछले 7 साल में एक बैठक में नहीं आया जो देश के इंटरनेट के लिए जिम्मेवार है। महोदय आपके से संरक्षण चाहूंगा वैसे अधिकारी जो प्राइवेट के नजरिया से प्राइवेट फेस बना करके भारत सरकार के पैसे से जिसकी जिम्मेवारी है हमको दे रहे, वो बिल्कुल इस देश में धोखा कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री निर्णय लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये सीएससी के जो स्थापित पूरे भारतवर्ष में ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी का एजेंसी है जो ब्रॉडबैंड पर, उस पर आपसे संरक्षण चाहूंगा अध्यक्ष जी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और बिहार के उन अधिकारी जो इन बच्चों ने, हमारे यहाँ बच्चे क्या कहते हैं, आपने सड़क दी है, बिजली ना भी दे, आप मुझे इंटरनेट की सुविधा दे दीजिए, मैं महीने में 5 लाख कमा सकता हूं। देश का नौजवान तो यही मांग रहा है कि मुझे आप इंटरनेट की कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी दे दीजिए। देश और दुनिया में हम अपनी नजारा दिखा सकते हैं। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि सीएससी का ये जंजाल और खास करके वैसे अधिकारी जो इन गरीब बच्चों का जो आवेदन को रिजेक्ट करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और विशेष रूप से माननीय सदस्यगण जी, सभी माननीय सदस्यगण अपनी बात को 1 मिनट में कहे तो मैं अलाउ करूंगा। 1 मिनट के बाद मैं महोदय, मैं सीएससी वाले पर आपका नियमन होना चाहिए, बंद कर दूंगा। ओनली 1 मिनट, 1 मिनट प्लीज। श्रीमती कविता सिंह, कविता सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरे संसदीय क्षेत्र सीवान की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ। महोदय, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली मेहरौना माझी राज्य मार्ग पर अनेकों गाड़ियों का आवागमन होता है, जिस जाम की समस्या बनी रहती है और यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से मांग करती हूं कि यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए मेहरौना माझी राज्य मार्ग को राष्ट्रीय राज्य मार्ग में तब्दील करने की कृपा की जाए। श्रीमती शताब्दी राय। स्पेशल थैंक यू, क्योंकि इतना रात तक आप बैठे हैं इसलिए हम लोग को मौका मिल रहा है। सर, मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी बीरभूम का नौलहाटी में बिजनेसमैन के लिए जितने ट्रेन थे पहले तो कोविड के लिए बंद था, वो अभी तक चालू नहीं हुआ, इसलिए नौलहाटी से कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, झारखंड, बिहार कहीं पे भी वो लोग जा नहीं पा रहे। इसलिए इतना 2 साल से जितना नुकसान हुआ इसमें और भी नुकसान हो रहे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो हावड़ा जयनगर, हावड़ा राजगीर, वाराणसी, शियालदह, बर्धमान, मालदा, नौलाटी, आजिमगंज, रामपुरहाट, हावड़ा, ये सब ट्रेन को स्टॉपेज देने के लिए जिसमें लोग जा सकते आ सकते। कोई 2 ट्रेन है जिसमें आप में है, डाउन में नहीं, उत्तर बंगो एक्सप्रेस एंड गौड़ एक्सप्रेस। लेकिन सर ये अगर चालू नहीं होगा तो बिजनेसमैन का जितना नुकसान हो रहा है वो सरकार को देखना चाहिए। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, 2-3 ट्रेन ऐसा भी है जिसमें मैं भी ट्रैवल करती हूँ, उसको जितना टाइम बार है उससे बहुत कम टाइम लगते, इसलिए क्योंकि बार बार वो लोग बीच में रुक जाते हैं क्योंकि एडवांस पहुंच गए। मुझे लगता है मिनिस्ट्री को और 2-4 बार देखना पड़ेगा टाइमिंग कितना है, वो टाइमिंग कम कर सकते हैं कि नहीं, अगर करे तो हम सबका ये अच्छा होगा। थैंक यू सर। श्रीमती संगीता आजाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी।
अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान अपने राज्य के लोगों के बीच जो पुरानी पेंशन योजना के पुनरुद्धार की बढ़ती मांग को लेकर दिलाना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं अपने राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बधाई देती हूँ, लेकिन जब अब चुनाव खत्म हो गए हैं, मैं सरकार का ध्यान लंबे समय से चली आ रही इस मांग को पूरा करने पर आकृष्ट कराना चाहती हूँ। पुरानी पेंशन की योजना एक लाभ आधारित योजना थी, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को उनकी पेंशन के रूप में उनके अंतिम वेतन की 50% की गारंटी दी जाती थी। इस हद तक कि पुरानी पेंशन योजना ने पेंशन के उद्देश्य के लिए वेतन से कई कटौती नहीं की। हालांकि नई पेंशन योजना योगदान आधारित निवेश योजना के रूप में काम करती है, क्योंकि कर्मचारी के वेतन से 10% प्रति माह की कटौती की जाती है। नई पेंशन योजना और जीपीएफ की एक निश्चित राशि की गारंटी नहीं देती है। बाजार से जुड़े होने के कारण यह आर्थिक झटके के प्रति अधिक संवेदनशील है। आज वैश्विक अर्थव्यवस्था की अनिश्चित स्थिति को देखते हुए पुरानी पेंशन राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत आवश्यक सुरक्षा जाल के रूप में काम करेगी। सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों में चिंता बढ़ती जा रही है और उनकी ओपीएस को बहाल करने की मांग की जा रही है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, जिस मैंने पहले ही सबसे सहमति ले ली थी, 1 मिनट की। जिसमें देश भर के 15 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी शामिल हैं, ने भी इस संबंध में माननीय वित्त मंत्री जी को अपनी मांग को कहा है। उपरोक्त मामले को देखते हुए मैं कार्मिक मंत्री, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि पेंशन बहाल, पुरानी पेंशन की स्कीम को बहाल किया जाए, जिससे सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you, Speaker, sir. My subject regarding the Women Reservation Bill, sir. Sir, proposed on 108 Constitution Amendment Bill for 33% reservation to women Parliament and state assemblies is yet to be fulfilled. Even after 75 years of independence, women representation in Lok Sabha is limited 14.94% only. Sir, the women reservation bill pending since 26 years, sir. Sir, currently 81 women MPs are only existing against 542 MPs in Lok Sabha. Being a woman representative, I felt that this is the right time to accomplish bill for women reservation under the Modi's leadership. It will be a great pleasure to every woman in the country if the session in Parliament building commence with 33% of women MPs, as it is a custom in the country. अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं यहाँ पर महाराष्ट्र के धनगर समाज के आरक्षण के बारे में बात करना चाहूंगी। महाराष्ट्र राज्य का धनगर समाज ये अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स में ताल्लुक रखता है, पर बहुत सालों से ये ट्राइबल में मांग कर रहा है, जिसमें संविधानिक हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान में इनको जनजाति अनुसूचित जनजाति समाज में लिया है, धनगर और धनगढ़, ये इसमें पिछले 10,000 सालों से ये धनगर समाज जंगलों में रहता है, भेड़ बकरियों को पालन पोषण करता है और उनके साथ में ही जंगलों में रहता है, पर आज तक वो अपने न्याय के लिए, अधिकार के लिए मांग कर रहा है। सर 1 सेकेंड, अधिकारी के लिए मांग कर रहा है। अगर उन्हें उनके जात शेड्यूल ट्राइब्स का प्रमाण पत्र देते हैं तो उनकी आने वाली पीढ़ी जो है उनका लाइफ सिक्योर हो सकती है, उनका शिक्षण में मदद हो सकती है। सर उनको देने के लिए मैं पूरे सदन के माध्यम से मांग करती हूँ कि उन्हें शेड्यूल ट्राइब। స్పీకర్ సార్, ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. తెలంగాణ రాష్ట్ర జనాభాలో 70% ప్రజలు వ్యవసాయ ఆధారిత జీవనాధారం సార్. ఈ వ్యవసాయంలో ప్రధానంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వరి ధాన్యం ఎక్కువ పండిస్తారు స్పీకర్ సార్. ఈ యాసంగి పంటలో 40 లక్షల ఎకరాలలో వరి పండించారు. దాదాపుగా 80 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వరి ధాన్యం ఉత్పత్తి కాబోతుంది సార్. ఈ వరి ధాన్యాన్ని కొనడానికి అవసరమైన ఏర్పాట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేయకపోవడం వల్ల, కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయకపోవడము, రవాణా సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయకపోవడము, గోనె బస్తాలు కొనకపోవడము, ఎఫ్సిఐతో ఒప్పందాలు చేసుకోకపోవడం వల్ల రైతులు ఆందోళనతో ఉన్నారు సార్. తక్షణమే ఫుడ్ సెక్యూరిటీ మినిస్టర్ పీయూష్ గోయల్ గారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని పిలిచి సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ ద్వారా చర్చించి
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పండించిన వరి ధాన్యాన్ని మొత్తం కొనాలి సార్. అక్కడ రాష్ట్రము కేంద్రం ఒకరి మీద ఒకరు ఆరోపణలు చేసుకొని రైతులకు పండించిన పంటను కొనకుండా కష్టపెడుతున్నారు. పోయిన వర్షాకాలంలో కుప్పల మీద రైతులు గుండెలాగి 150 మంది చనిపోయినారు సార్. ఈసారి యాసంగిలో ఇలా జరగకుండా చూడాలంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే వ్యవసాయ धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि राजस्थान और मेरे संसदीय क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ में बेमौसम ओलावृष्टि और बारिश के कारण फसलों की बर्बादी हो गई। किसान सोच रहा था कि ये अच्छी फसल है, इस बार बिना मोटर चलाई इंद्रदेव की ऐसी कृपा थी कि अच्छी बारिश से फसलें अच्छी हो रही थी, लेकिन चना, गेहूं, सरसों, इसबगोल और अफीम ऐसी फसलें बर्बाद हो गई। मैं स्वयं खेतों पर जाकर इनकी सारी फसलों का निरीक्षण किया। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इनका सही आकलन हो और इनका मुआवजा मिले। चूंकि अफीम की खेती एक ऐसी खेती है जिसमें डोडे फट गए अध्यक्ष महोदय, और इसमें अभी सीपीएस की कुछ पद्धति के आधार पर भी लाइसेंस मिले जो हम लोग नहीं चाहते हुए मिले। उसमें भी सरकार जल्दी पॉलिसी का डिक्लेरेशन करे। चूंकि सारी फसलें गड़ गई और वो अकेले सीपीएस वाले बैठे हैं, तो उनकी फसलों का जल्दी निस्तारण हो। और जो पॉपी हस्क है उसमें 8/29 के कारण कई किसान उसमें आ जाते हैं, तो ये 8/29 समाप्त किया जाए और उसकी अफीम का तोल की मशीनें जो अपने तोल केंद्र पे इनकी जांच हो, ऐसा मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। Thank you, Honorable Speaker, sir. I'd like to take this opportunity to demand for an additional KV for the district of Srikakulam. Srikakulam has a population of approximately 30 lakh people, and especially when you consider the people working in central institutions, including the people in defense, paramilitary services, it is a huge number, sir. And the existing KV, which is in Srikakulam town, is facing a lot of demand for additional KV seats, and we get the request for additional KV seats, sir. Even though we are given 10 as an MP, I am getting requests of up to 300, 400, sir. And if you consider paramilitary services also, the highest number of people recruited by the army and paramilitary services has been from the district of Srikakulam. Based on this, I would like to demand for an additional KV at Palasa, sir, which is on the other side of the district. The existing one is at one end, sir, and it is very difficult for people, especially children, to access it from the other side, which is approximately 130 kilometers away. So I once again request the central government to set up another Kendriya Vidyalaya at Palasa, sir. सर, पंजाब में जो कबड्डी खेल है वो पंजाब की माँ खेल उसको माना जाता है, जो सारे संसार में दूसरे देश भी उसको अपना रहे हैं। सर, मेरे कंस्टिट्यूंसी में नंगल अंबिया गांव का एक 36 साल का इंटरनेशनल खिलाड़ी संदीप सिंह संधू, जिसने दुनिया में अपना कबड्डी में नाम कमाया और 5 जो वर्ल्ड कप है उसका कैप्टन रहा और कबड्डी को हमारे देश में प्रमोट कर रहा था, विदेश में प्रमोट कर रहा था। इंडियन ब्रिटिश रेजिडेंट था वो। सर, वो 14 मार्च को मेरे ही क्षेत्र में मलिया खुर्द गांव में कबड्डी मैच में पार्टिसिपेट कर रहा था। उस पर अंधाधुंध गोलियां चला के उसका कत्ल कर दिया गया। तो इन्वेस्टिगेशन में आया कि उसकी जो साजिश है वो विदेश में हुई, कनाडा में हुई, क्योंकि दूसरे देशों में बहुत सारी फेडरेशन कबड्डी पे बनी हुई हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक इंटरनेशनल क्राइम हुआ। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, पहले तो जो विदेश में कॉन्सेप्ट्रेटर हैं जो आइडेंटिफाई हो गए उनकी एक्स्ट्राडिशन हो, और दूसरी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो सतर्क हों ताकि आने वाले समय में पंजाब की धरती पे ऐसे जो क्राइम इंटरनेशनल क्राइम ना हो। धन्यवाद सर। श्री रितेश पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र अंबेडकर नगर में और पूरे पूर्वांचल में बुनकरों की स्थिति बहुत ही बदतर हो गई है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि मैनमेड फाइबर यानी कि जो यार्न होता है उसके ऊपर 1 जनवरी 2022 से 5% से जीएसटी बढ़ा करके 12% कर दिया गया है। इससे बुनकरों का और खास तौर से हमारे यहाँ जो छोटे बुनकर हैं उनकी स्थिति जो है बद से बदतर हो गई है। पिछले कुछ वर्षों में नोटबंदी के कारण, जीएसटी के खराब क्रियान्वयन के कारण और कोविड-19 महामारी के कारण अब ये यार्न के दामों का बढ़ना मेरे क्षेत्र के बुनकरों के लिए एक भारी संकट के रूप में उभर के आया है।
मेरे यहाँ के लोग अब बॉम्बे जैसे क्षेत्र को अपने छोटे छोटे लूम छोड़ करके बॉम्बे और मद्रास की तरफ उनको जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि जो पुराना जीएसटी रेट था 5% का, उसके ऊपर लाया जाए, इनफैक्ट इसको 0 किया जाए ताकि बुनकरों की स्थिति बेहतर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। राजदीप राय। राजदीप राय महोदय नमस्ते, और मेरे को 0 आवर में एक निवेदन रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इलाका में इंटरनेशनल बॉर्डर है, सिर्फ असम का साथ बांग्लादेश का बॉर्डर है ऐसा नहीं है, मेघालय का साथ भी बांग्लादेश का बॉर्डर है, और उस जगह पे काफी सारे इलीगल एंटी नेशनल सेडेशियस एक्टिविटीज होते रहते हैं, और स्मगलिंग भी काफी सारा पैमाने पे स्मगलिंग भी हो रहा है। मेरे आपके माध्यम से भारतवर्ष की गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन है कि एक वहां पे इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक ऑफिस जो एक आईपीएस ऑफिसर के अधीन में हो, एक पूरी की पूरी ऑफिस, पूरी की पूरी व्यवस्था वहां पे कायम हो, ताकि वहां पे जो इलीगल एक्टिविटी, जो स्मगलिंग हो रहा है, जो बाकी जो सिडेशियस एक्टिविटीज हो रहा है, उस पर ध्यान रखा जाए, उस पर थोड़ा कब्जा भी किया जाए, क्योंकि वहां का काफी सारे लोग, एक विशेष संप्रदाय की देखा जाता है कि 5 साल 7 साल से वो लोग मिसिंग है, अचानक वो लोग आते हैं और सारे ये सब एंटी सोशल काम पे लिप्त हो जाते, तो उस पर थोड़ा ध्यान भारत सरकार की रहेगा। मेरे जैसे कि वेस्टर्न फ्रंट में है, आपके माध्यम से गृह मंत्री जी का पास ये निवेदन है। धन्यवाद। श्री संतोष पांडे। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अवसर दिया, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न छत्तीसगढ़ के विषय में। महोदय, छत्तीसगढ़ वनों से आच्छादित क्षेत्र है और मेरा क्षेत्र भी वनों से आच्छादित है। महोदय, आज छत्तीसगढ़ में वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। आज जितना तस्करी, चाहे वो बीजा हो, साल हो, सागौन हो, शीशम हो, चारों तरफ छत्तीसगढ़ में केवल ठूठ ही ठूठ दिखाई दे रहा है। महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार निरंतर जंगल कम होते जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। कवर्धा और कबीरधाम जिले में प्रतिवर्ष 38 वर्ग किलोमीटर का जंगल कम हुआ है। जिले के पंडरिया क्षेत्र ही गत 3 वर्षों में 1585 वर्ग किलोमीटर से घटकर इस वर्ग 1547 वर्ग मीटर हो चुका है। महोदय, वनों की कटाई और इसके विरुद्ध खेती के लिए, वन भूमि में अतिक्रमण के लिए छत्तीसगढ़ प्रशासन सहित पूरा विभाग संलग्न है। महोदय, जहां लेन देन प्रमुख कारक है, छत्तीसगढ़ सरकार के वन मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में कवर्धा में लगातार हो रही वनों की अवैध कटाई कई सवाल खड़े कर रहे हैं। कबीरधाम जिले के बोड़ला, रेंगाखार, झलमला, रोल, खैरागढ़, गंडई, सालेवारा, उसरवाही, चिल्फी घाटी में अंधाधुंध कटाई जारी है। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मानपुर और पाना बरस में जिन परिवारों को 1 हेक्टेयर भूमि वन अधिकार पट्टा मिला है, उनमें से कई ने 20 एकड़ पर कब्जा कर लिया है। सड़क निर्माण हेतु मुरुम के लिए अवैध कटाई व तस्करी, इसकी जांच के लिए एनजीटी की निगरानी समिति में जांच अपरिहार्य है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि दोनों जिले में एनजीटी की टीम जांच करे, यही आपसे प्रार्थना है महोदय, और वनों को बचाया जाए, छत्तीसगढ़ को बचाया जाए। रविंद्रनाथ। Thank you, Speaker, sir. Sir, during the recent meeting of the Central Board of Trustees of Employees Provident Fund organization held at Assam, a decision was taken to reduce the annual rate of interest to be credited on Employees Provident Fund from the present rate of 8.5% to 8.1% for the year 21-22. And this will be implemented as soon as it is approved by the Finance Minister. Sir, most employees maintain the EPF as a post-retirement benefit. The interest rate on EPF, which was at 8.8% during the year 15-16, came down gradually to the level of 8.5% at present. Sir, this decision will directly affect nearly 6.40 crore EPF beneficiaries and is a great disappointment to these employees who are slowly returning to normal life after having underwent a lot of sufferings both financially and mentally due to COVID-19. So I urge upon through you, sir, to the government to reconsider the proposal to reduce the interest rate on EPF any further and retain same at the present
rate of 8.5%. Thank you. Shri M.K. Raghavan. Is to bring to your kind attention, Speaker Sir, regarding the exorbitant increase in the bulk purchase of diesel and petrol by oil marketing companies. Sir, in our state, this is significantly affecting our public transport organizations such as Kerala State Roads Transport Corporation. Sir, generally, for bulk purchase of any goods, the prices are expected to be lower than market price. So unfortunately, here in the case of petrol and diesel, the prices are much higher than those at retail levels. So this situation is quite unheard of and warrants urgent intervention. So the oil companies are supplying fuel to KSRTC at a rate of rupees 27.88 per litre, higher than the current market price since March 16, 2022. So this creates a situation whereby the profit of public transport corporation erodes and encourages more private transport. So I request Honourable Minister, through you, sir, immediately, sir, the Honourable Speaker, sir, to kindly intervene immediately to take necessary steps to keep the price rise of petrol and diesel under control. Thank you, sir. Shri Vinod Sonkar ji. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी लोकसभा में मनौरी रेलवे स्टेशन है, जो बहुत ही पुरानी बाजार है और जहां के व्यापारी हमेशा व्यापार के लिए उनको प्रयाग जाना पड़ता है और कानपुर जाना पड़ता है। मैं एक नहीं अनेक बार चौरी चौरा ट्रेन की स्टॉपेज की मांग कर चुका हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि व्यापारियों की समस्या के समाधान को करने के लिए और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चौरी चौरी ट्रेन का मनौरी रेलवे स्टेशन पे स्टॉपेज देने की कृपा करें। श्री एस.डी. हसन, श्री सुनील कुमार मंडल, জিরো আওয়ারে বলতে সুযোগ দেওয়ার জন্য। স্যার, আজকের রোডসের ডিমান্ডস অ্যান্ড গ্যারান্টির উপরেই আমার এই প্রশ্নটা, যেখানে বলতে পারা যায়নি ডিমান্ডস অ্যান্ড গ্যারান্টির উপরে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা রাস্তা হলদিয়া থেকে খড়গপুর হয়ে আরামবাগ, বর্ধমান হয়ে বীরভূম এবং NH-34-এর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা। এটি স্যার আমি কনসালটেটিভ মেম্বার ছিলাম, তখন এই রাস্তাটার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এর ম্যাপ পয়েন্টিং তৈরি আছে, ল্যান্ড অ্যাভেলেবেল, ল্যান্ডের কোনো সমস্যা নেই। মাননীয় নীতিনজি এ বিষয়ে যদি একটু বেশি করে তৎপর হন, এবং এখানে একমাত্র সিঙ্গেল রোড স্যার, এখানে 10 মিনিট অন্তর অন্তর বাসের রাস্তা, অনলি যোগাযোগের রাস্তা, এবং মাঝে মাঝে সিঙ্গেল রোড হওয়ার জন্য মাঝে মাঝে অ্যাক্সিডেন্ট মাঝেই হয়, ডেলি প্রায়। এটাকে যদি 4 লেন করার যে পরিকল্পনা করা হয়েছে, যদি 4 লেন করা হয়, তাহলে শুধু এখানকার এগ্রিকালচার বেস এবং ছোট বড় অনেক ইন্ডাস্ট্রি আছে, সেখানেও ব্যবসার ক্ষেত্রে আরো উন্নতি করা যাবে এবং এলাকার মানুষও এখানে যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা পাবে। ধন্যবাদ স্যার। মোহাম্মদ সাদিক। बोलने का मौका दिता। सर, मैं पार्लीमेंट हल्का फरीदकोट तो चुन के आया हाँ। मेरे हल्के दे विच पार्लीमेंट हल्के दे विच 4 जिले आउंदे ने। पहला एक फरीदकोट, दूजा मोगा, तीजा बठिंडा ते चौथा श्री मुक्तसर साहब। सर, मेरे इलाके का पीण वाला पानी इन्ना ज्यादा प्रदूषित हो चुका है कि उसनूं पीण वाले ਇੰਨੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਨਾਮਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਾਰਫਤ, ਜੋ ਕਿ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸਵੱਛ ਕਰਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਬੱਚੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ। मैं आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करदा, आप जी ने बोलने का मौका दिता, धन्यवाद। श्री राजेंद्र अग्रवाल जी। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। तो चुनाव के पश्चात ईवीएम की मशीनों को रखने के लिए और मतगणना के लिए व्यवस्था की जाती है। सामान्यतः किसी कृषि मंडी में एक टेम्परेरी व्यवस्था उसकी की जाती है। उसके कारण से तो जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, वो डिस्प्लेस हो जाते हैं महीने भर के लिए। दूसरे, सुरक्षित व्यवस्था होने के कारण से अनेक बार छोटे मोटे विवाद भी उसके अंदर होते हैं। मेरा निवेदन ये है, क्योंकि चुनाव निरंतर होते ही रहते हैं, इसलिए ईवीएम के रखने की और मतगणना की परमानेंट व्यवस्था प्रत्येक स्थान पर की जाए, क्योंकि ताकि किसी प्रकार की समस्या उसके कारण से न हो। श्री एम धनुष कुमार। மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களுக்கு வணக்கம். திருநெல்வேலியிலிருந்து கேரளா வரை செல்லும் பாலருவி எக்ஸ்பிரஸ் தென்காசி மாவட்டம் வழியாக செல்கின்றது. இருந்தபோதிலும் கடையம், பாவூர் சத்திரம், செங்கோட்டை ரயில் நிலையங்களில் இந்த ரயில் நிற்காமல் செல்வதால் பயணிகள் மிகுந்த சிரமத்துக்குள்ளாகின்றனர். இது சம்பந்தமாக ரயில்வே அமைச்சகத்திடமும் ரயில்வே உயரதிகாரிகள் பலமுறை தெரிவித்தும் எந்தவிதமான நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. அதேபோல் தொகுதிக்கு உட்பட்ட சங்கரங்கோயில் தாலுகா, சென்னிகுளம் மற்றும் ராஜபாளையம் பகுதிகளில் ரயில்வே அண்டர் பிரிட்ஜ் பால வேலை இதுவரை தொடங்கப்படாமலே உள்ளது. அறிவிக்கப்பட்டு நீண்ட நாட்கள் ஆன பிறகும் வேலை நடைபெறாததால் மக்கள் சிரமத்துக்குள்ளாகின்றார்கள். திருவள்ளிபுத்தூர் ரயில் நிலையத்தில் நடைமேடை பணி தொடங்கப்பட்டு நிறுத்தப்பட்டுள்ளதால் பயணிகள் சிரமத்துக்குள்ளார்கள். இந்த பணிகள் அனைத்தும் உடனடியாக நடத்தி முடிக்க வேண்டும் என்று தங்களின் மூலமாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். नंदी वणकम। श्री संगमलाल गुप्ता। अध्यक्ष जी, मेरे लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में स्थानीय नगर पंचायत लालगंज प्रतापगढ़ में भारत सरकार के 14वें 15वें वित्त में विकास कार्यों को प्राप्त धनराशि बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ। वहां स्थानीय उत्तर प्रदेश में गिने चुने कांग्रेसी विधायकों में से एक विधायक होने के कारण नगर पंचायत में बड़े पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार के चलते वहां सड़कों के इस्तेमाल की जाने वाली इंटरलॉकिंग ईंटों का हालत इतनी खराब है कि 5 वर्षों के भीतर ही वह टूट फूट कर गड्ढे मिट्टी के टुकड़ों के समान हो जाते हैं। यही नहीं, भारत सरकार के से धन प्राप्ति इतना व्यापक दुरुपयोग हुआ कि सरकार के मानकों को दरकिनार करते हुए स्थानीय कांग्रेसी विधायक किसी भी संवैधानिक पद पर न रहने वाले उनके पिता के नाम की फोटो लगाते। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि नगरीय विकास भारत सरकार मंत्रालय से मांग करता हूं कि भारत सरकार के एक तकनीकी अधिकारी की विशेष टीम गठित कर नगर पंचायत लालगंज द्वारा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में 14वें व 15वें वित्त की धनराशि के विकास कार्यों की सहित प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के मदों में इंटरलॉकिंग अन्य विकास कार्यों की तकनीकी जांच कराकर प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाने का निर्देश निर्गत करें। धन्यवाद। मुरलीधरन। Is going on in the state of Kerala against the K-Rail project. Sir, so many times Honorable Railway Minister told here that this project was not approved by the central government and we had given permission only for environmental survey. Sir, in the name of environmental survey, Kerala government officials are putting stone in everywhere of Kerala. People are very much agitated, but that agitated people, including ladies and children, were cruelly beaten by the police. Sir, male police is attacking female agitators. That is the present situation in the state of Kerala. So some police officials are not wearing their nameplate. Most probably they are the gundas of the CPM people in Kerala. So my request to the railway minister is that if the government is going through by these laying stones in everywhere in Kerala, ask the chief minister to stop this process, or central government should withdraw from the joint venture of this K-Rail project. Thank you, sir. श्री आलोक कुमार सुमन। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान गोपालगंज थावे जंक्शन से किसान रेल शुरू करने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। महोदय, किसान रेल को कोरोना पीरियड में शुरू किया गया ताकि बड़े बाजारों तक छोटे किसानों के सामानों को आसानी से समय पर पहुंचाया जा सके। किसान रेल एक ऐसी ट्रेन है जिसमें चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज की सुविधा है। इसे छोटे किसान एक दूसरे राज्यों के व्यापारियों से जुड़कर कम खर्च में व्यापार करते हैं। महोदय, दिसंबर 2021 तक पूरे देश में 1806 किसान रेल 153 रूट में चलकर 5.9 लाख
टन कृषि सामान को ढोया है। अतः महोदय, आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज के थावे जंक्शन से किसान रेल चलाया जाए ताकि सरकार को रेवेन्यू प्राप्त हो एवं सभी किसानों को व्यापार की सुविधा मिल सके। धन्यवाद यादव। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। कोरोना बीमारी से पहले देश के हर हिस्से में सेना कैंप लगा के जवानों का चयन करती थी और 2 साल से ये नहीं हुआ है। ऐसे में जिन लड़कों ने ये सपना पाल रखा था, मेहनत लड़के बहुत नौजवान हैं, मेहनती हैं और बिना जूते के महोदय वो सड़क भी नहीं है, चक रोडों पर दौड़ते हैं, अपनी तैयारी करते हैं सेना में भर्ती होने के लिए। उनके बड़े सपने हैं और 2 साल से ये कैंप सेना ने नहीं किया है। आपके माध्यम से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि सेना फिर जगह जगह पर कैंप लगावे और जिन लड़कों का 2 साल कैंप न लगने की वजह से एज लिमिट क्रॉस हो गई है, उनको 2 साल की वृद्धि भी दी जानी चाहिए एज लिमिट में। धन्यवाद। श्री मरगनी भरत। Thank you, Speaker sir. I take this opportunity to raise an important issue to stop the privatization of public sector banks, sir. Sir, as Honorable Finance Minister last month in her statement, she said that she mentioned to disinvest 2 public sector banks, sir. Sir, if the banks are making in loss, so earlier government has taken a decision to merge the banks, sir, to revive it. So what happens, sir, if we privatize the banks, sir, they look into their personal motto and their own monetary benefits. They may sanction thousands of crores to their sister concerned banks and their allies. Sir, what if the loans are being given to some companies if they bankrupt? And what is the guarantee for the depositors, sir? Sir, there are about 8 lakh bank employees, sir. What is the job security for them? Sir, almost like 5 lakh superannuated employees, sir. They've been requesting since ages, sir, about their pay revision, sir. Still not it is been updated, sir. They are having more than lakhs of crores in their corpus fund, sir. So why can't government think to update the pay revision, sir? So kindly, therefore, I request through you, sir, to stop privatizing the public sector banks. Thank you. दिलीप सेकिया। अध्यक्ष जी धन्यवाद। पूरे देश आजादी का अमृत महोत्सव 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे हैं, लेकिन 1975 में जो घटना हुए, इमरजेंसी का डिक्लेयर करके गणतंत्र को कुचलने का जो काम पाप किया, उस समय जो हमारे गणतंत्र रक्षक सेनानी जो लोग थे, उनका परिवार जो पीड़ित परिवार है, उनके लिए उनका सम्मान, उनका सामाजिक सुरक्षा के लिए भारत सरकार इसी वर्ष में उनके लिए कुछ वन टाइम उस असिस्टेंस हो, उनका सम्मान सुरक्षा का प्रदान करे, ऐसा मेरा भारत सरकार के प्रति हमारा अनुरोध है। धन्यवाद। श्री के सुरेश जी। थैंक यू स्पीकर सर। Sir, the defunctioning of National Commission for Scheduled Tribes for the last 4 years is a deliberate denial of justice for scheduled tribes and calculated weakening of the constitutionally mandated body as many cases and complaint file remain unresolved. A body with judicial powers aim to protect the interest of the most vulnerable social classes being deliberately curtailed. Its rights is a serious lapse and grave mistake that denies the scheduled tribes their right to justice and increased pendency of complaints. Sir, in this issue, the Parliamentary Standing Committee also reported in the Parliament for the lapse of the Tribal Commission defunctioning. So, the media also
seriously reported this issue. This government is always saying that we are for welfare of the scheduled tribes and scheduled castes and scheduled tribes. But what is the situation in National Commission for Scheduled Tribes? Even the commission chairman and members also not appointed. Last 4 years, this post is lying vacant. So, Honorable Parliamentary Affairs Minister of State, Sri Arjun Meghwal ji, is also very champion of the scheduled caste scheduled tribe rights. So, why government is not filling up the chairman and members of the scheduled tribe commission? No. So, parliamentary, the standing committee also reported in the parliament. So, I would like to request honorable government through you, sir. So, immediately step has been taken in this matter. Thank you. Okay, Sunil Kumar Singh. आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ये मांग करता हूं भारत सरकार से कि कश्मीर के हिंदू विस्थापितों के साथ 80 और 90 के दशक में जो हुआ है उसकी जांच कर जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए और खास करके 84 से 89 के बीच जब देश में प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, उन्होंने जब वहां जगमोहन को बनाया और उस बीच जो 87 का चुनाव हुआ, जिस 87 के चुनाव को जम्मू कश्मीर में रीक किया गया, जिसके चलते वहां अराजकता फैली और मास स्केल पर कश्मीर में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ और जेनोसाइड हुआ, जिसमें सिखों का भी जेनोसाइड हुआ। और साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह भी मांग करता हूं कि 1989 में जम्मू कश्मीर के अंदर किसके आदेश से 70 आतंकवादियों को छोड़ा गया, जिनकी भूमिका लगातार जेनोसाइड में थी। इसलिए ये पूरा देश ये जानना चाहता है कि आज जो भांति के अनेकों पत्र और पत्रिकाओं में बहुत सारे लेटर आ रहे हैं, उनकी सत्यता क्या है और किसकी क्या भूमिका रही है, ये देश को जानने का हक है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से ये मांग करता हूं कि कश्मीर के विस्थापितों को, खास करके कश्मीरी हिंदू और सिखों का जो जेनोसाइड हुआ है, उस पर फिर से कार्रवाई करें और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दें, ताकि लोगों का भारत के संविधान और लोकतंत्र में विश्वास बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीत मंडल। माननीय अध्यक्ष जी, आपने 0 आवर में बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको महोदय। महोदय, मेरा क्षेत्र झंझारपुर जो मधुबनी जिला के अंदर आता है महोदय, और झंझारपुर और मधुबनी मिलाकर के 2 संसदीय क्षेत्र है महोदय। महोदय, वो झंझारपुर जो है आपको नेपाल के बॉर्डर पर अवस्थित है महोदय। वहाँ एसएसबी, सीआरपी, बहुत सारे सेंट्रल का जो है सर फोर्सेस हैं, लेकिन महोदय वहाँ केंद्रीय विद्यालय हम लोगों के पास नहीं है। बहुत बार मैंने सवाल को उठा चुका हूँ महोदय आपके माध्यम से। और महोदय वहाँ जो है बच्चे वहाँ के 100-150 किलोमीटर पढ़ने के लिए दरभंगा जिला जाते हैं महोदय। तो आपके माध्यम से आपसे अनुरोध होगा महोदय कि कम से कम शिक्षा मंत्री जी को कि हम लोगों के क्षेत्र में कम से कम एक स्कूल हो जाए महोदय। 75 साल हम आजादी का महोत्सव मनाने जा रहे हैं महोदय। धन्यवाद। और हम लोग का जो कूपन 1 मिनट महोदय, कूपन जो है 10 ठो महोदय वो बंद कर दिया जाए या बढ़ा दिया जाए महोदय। धन्यवाद महोदय। Vanakkam Speaker Sir, regarding the extension of National Child Labour Project, the Union Labour Ministry has written to all states, union territories that NCLP project will not be extended beyond 31st March 22 and it will subsume under Samagra Shiksha Abhiyan, which is implemented by the School Education Department. This letter is really a shock, as in times of pandemic which pushed more children into labour. It is worrying it is subsumed under SSA. The NCLP will lose the targeted focus, which was one of the reasons for its effective implementation. Taking the case of Tamil Nadu, nearly more than 1 lakh children had been benefited since the program began in the year 1986. My district Dharmapuri is known for its effective implementation of this scheme, as little more than 15,000 children have been mainstreamed into regular school and 129 former NCLP children are doing higher studies like MBBS, BTech, BE, etc.
There are a lot of success stories in Tamil Nadu in general and Dharmapuri in particular regarding the NCLP project. NCLP under a separate head is focusing on specific target ideas, identifying the victim, withdrawing them from hazardous work environments and rehabilitating them. According to that, the staff or volunteers of NCLP have to spread awareness and persuade the parents to bring children to join the special training centers. Sir, hence I request this government to extend the NCLP project under the Labour Ministry and kindly expedite the payment without any delays. Thank you, sir. A small village on the banks of River Bhima in Chittapur Taluka of Kalburgi, Karnataka, which revealed the historically valuable Ashokan edicts written in Prakrit language and Brahmi script at the foundations of the temple, attracting historians from across India. The revelations subsequently prompted excavation by the ASI at Sanati and the nearby Kangnahalli that in turn led to discovery of the magnificent Mahastupa, which had been referred to as Adholoka Mahachaitya in the inscriptions. More importantly, is a sculpture portrait of Ashoka seated on his throne with his queens was also discovered. It is also older than the Sanchi Stupa of Madhya Pradesh. It is also believed that Sanati is the place where Emperor Ashoka may have travelled towards the end of his life and breathed last. Therefore, I urge the Minister of Culture to kindly develop this site as a World Heritage Site and also request you to direct the concern to preserve the items which were found during the excavation by building a world-class museum. Sanati is the largest Buddhist site in India excavated by ASI. Despite of having a rich historical and cultural heritage, it is not on the Indian map. Sir, we met our Cultural Minister Arjun Ram Melwalji regarding this. I sincerely request through you, the Gulbarga is most backward area and it's such a... Deepak Bej. Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र बस्तर जो कि रायपुर राजधानी से 300 किलोमीटर अधिक दूरी पर स्थित है और लगभग 85 किलोमीटर रायपुर टू धमतरी 4 लेन बन रही है और 225 किलोमीटर आगे बस्तर तक जोड़ने की आवश्यकता है माननीय अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं हमारी क्षेत्र की जनता लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि 4 लेन जोड़ा जाए। वहीं 85 किलोमीटर जो 4 लेन बन रही है बहुत धीमी गति से बन रही है, उसको और तेज गति उसको बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि वो 50 किलोमीटर जल्द से जल्द पूरा हो जाए। धन्यवाद। हाजी फजलुर रहमान। थैंक यू स्पीकर महोदय। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के अंदर के बीच जो युद्ध चला जा रहा है वो लंबा होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे 18,000 स्टूडेंट्स जो कि यूक्रेन में एजुकेशन हासिल कर रहे थे और उसमें 87 स्टूडेंट मेरे ज़िला सहारनपुर के हैं, उनका भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है। तो पेरेंट्स चिंतित है, स्टूडेंट्स भी चिंतित हैं कि आखिर उनके कोर्सेज पूरे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो मेरा भारत सरकार से मांग है कि स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को आश्वासन दिया जाए कि उनके कोर्सेज और उनके एजुकेशन को पूरी कराने का प्रबंध किया जाएगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी मांग करता हूँ कि भारत सरकार अब एजुकेशन पॉलिसी ऐसी बनाए, खास तौर से MBBS के बच्चों के लिए, कि हमारे यहाँ के बच्चे भारत से बाहर ना जा पाए, उनका MBBS के कोर्सेज यहीं पर मुकम्मल हो जाए। धन्यवाद। श्रीमती जी माधवी। Thank you, Speaker, sir. Sir, I would like to bring to the notice of this August House that Paderu Agency area falls under my parliamentary constituency of Araku. Sir, in my parliamentary constituency, coffee is grown in an extent of 1,58,000 acres, sir.
Sir, annual worth is 180 to 200 crores. Sir, in this regards, a new coffee project, coffee shade programs have been taken up in convergence with MGNRGS in ITDA Paderu in my parliamentary constituency of Araku, sir. I would like to bring to the notice of this House, only the wage component is met from NRGS funds and no material component is earmarked in the Manrega funds. The material component is met from the Tricor funds of AP state government. Every year, through the implementation of coffee shade programs, around 20 crores and 30 crores in plumped directly to the deserving weaker section of the society, sir. In this regard, I would like to request the central government to lead and helping hand to the tribal community in the Andhra Pradesh by providing financial support under MGNRGS to the ongoing coffee project in the Paderu agency, sir. Thank you. Srimati B.V. Satyavati. Thank you, Speaker, sir. The latest National Family Health Survey, NFHS, has indicated an increase in anemia among children and women. NFHS 5 2018-19 data shows that more than half of women in 13 out of 22 states are anemic, and anemia among pregnant women has increased in half of the states and union territories compared to NFHS 4. Therefore, I request, through you, Speaker, sir, the Ministry of Health and Family Welfare to take additional proactive measures while trying to address anemia among women and adolescents with integrated solutions of supplementary nutrition for infant girl children. Thank you very much, sir. Shri Jagdimba Pal ji. अध्यक्ष जी, ये मेरा सौभाग्य कि इस समय आप आसन पे हैं। आप स्वयं सिद्धार्थनगर के कपिल वस्तु महोत्सव में आप गए थे और आज उस कपिल वस्तु में जो बुद्धिस्ट सर्किट के सारनाथ, कुशीनगर, कपिल वस्तु और श्रावस्ती का महत्वपूर्ण स्थान है और गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है। पूरे विश्व से जो गौतम बुद्ध में आस्था रखते हैं, कौशाम्बी को भी जोड़ देता हूं, और उसमें आस्था रखते हैं, आज वो लाखों और करोड़ों के पर्यटक आते हैं। और कलकत्ता यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने जो खुदाई किया और जो पिपरहवा कपिल वस्तु से गौतम बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन की राजधानी में जो चीजें मिली थी, उसमें जो अस्थि कलश मिला वो यहाँ के राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखा हुआ। भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय संग्रहालय भी सिद्धार्थनगर के उस कपिल वस्तु में स्थापित कर दिया, जिससे आपको भी जानकारी है। मैं आपके माध्यम से, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे कि जब आज एक बुद्धिस्ट सर्किट, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि दुनिया ने युद्ध दिया लेकिन हमने गौतम बुद्ध को दिया। बुद्ध का तात्पर्य है शांति, करुणा, ममता, अहिंसा, और आज उसके प्रतीक उस गौतम बुद्ध की जन्मस्थली पे उस राष्ट्रीय संग्रहालय में जो 2 अस्थि कलश, उसमें से एक अस्थि कलश अगर वहां रखा जाए तो जो बुद्ध सर्किट में आने वाले लाखों पर्यटक हैं सारनाथ, कुशीनगर, कपिल वस्तु, कौशाम्बी और श्रावस्ती के, उनको वहां उनके लिए दर्शन करने का स्थान मिलेगा। ये मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं। धन्यवाद। श्री के.जे. कुमार। Honorable Speaker, sir, thank you for the opportunity. I raise to bring the attention of the Civil Aviation Minister regarding the inconvenience faced by the airlines passengers, particularly in the southern sectors. For example, if a flight starts from Chennai to Madurai, the cabin language used is either Hindi or English. 80% of the passengers are Tamil understanding, and 80% of the passengers don't understand what announcement is made. Therefore, I register here that the announcement made inside the flight is only a formality and it is not really intended or meant to understand by the passengers. This is unfair, unethical, and such practices should not be allowed in a democratic country where we have a multicultural facilities. Therefore, I request you sincerely to guide the Civil Aviation Ministry to use the local language, vernacular language in the
cabin of the aircrafts. Thank you. श्री विजय कुमार। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से भारत सरकार के मंत्री श्री ज्योतिराज सिंधिया जी से मांग करना चाहता हूं कि गया से मुंबई के लिए और गया से चेन्नई के लिए हवाई जहाज शुरू किया जाए। साथ ही साथ गया से दिल्ली के लिए जो हवाई जहाज चल रही हो प्रतिदिन किया जाए। हमारे के यहाँ गया में बौद्ध धर्मावलंबी के लोग आते जाते रहते हैं देश विदेश से, और वहाँ पे पिंडदान के लिए देश के कोने कोने से और विदेश से भी लोग आते हैं। आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि वहाँ पर प्रतिदिन जहाज उपलब्ध कराया जाए। धन्यवाद। श्री राम शिरोमणि। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से निवेदन करता हूं कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन में हम सांसदों को 10 बच्चों के स्थान पर 50 बच्चों की पढ़ाई की स्वीकृति दी जाए। साथ साथ केंद्रीय विद्यालय में बच्चों के रहने के लिए भी हॉस्टल की व्यवस्था दी जाए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में नवोदय विद्यालय भी केंद्र की व्यवस्था है। केंद्रीय नवोदय विद्यालय में भी हम सांसदों को कम से कम 50 बच्चों के एडमिशन की स्वीकृति दी जाए। साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में जिससे बढ़ावा मिल सके और हम सभी लोगों को, क्योंकि हमारा लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। நன்றி மாண்புமிகு மக்களவை தலைவர் அவர்களே, என்னுடைய பாராளுமன்ற தொகுதி ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் கர்ப்பிணி பெண்கள் அதிகமாக இரத்த சோகை நோயினால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். இவர்களை கண்டறிந்து விரைந்து சிகிச்சை அளிப்பதற்கு மாவட்ட அளவில் மருத்துவ குழு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். பரமக்குடி அரசு மருத்துவமனையை மாவட்ட மருத்துவமனையாக தரம் உயர்த்தக்கூடிய வகையிலே கூடுதல் பணியாளர்களை நியமிப்பதற்கு நேஷனல் ஹெல்த் மிஷன் திட்டத்திலே ஒன்றிய அரசு கூடுதல் நிதி ஒதுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ராமேஸ்வரம் அரசு மருத்துவமனை 100 ஆண்டு கால பழைய கட்டிடங்கள் மற்றும் 60 ஆண்டு கால பழைய கட்டிடங்களில் செயல்பட்டு வருகின்றது. இதன் மூலம் பல்வேறு ஆபத்துகளும் ஏற்படக்கூடிய நிலையிலே இருக்கின்றது. எனவே பழைய கட்டிடங்களை அகற்றிவிட்டு நேஷனல் ஹெல்த் மிஷன் திட்டத்திலிருந்து புதிய கட்டிடங்கள் 60 படுக்கைகள் கொண்ட கட்டிடங்கள் கட்டுவதற்கு நிதி ஒதுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நன்றி. श्री नायब सैनी जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे 0 ओवर में मेरे लोकसभा क्षेत्र कुरुक्षेत्र की अति लोक महत्व की समस्या को उठाने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, कोरोना महामारी से पहले जगाधरी व अम्बाला के बीच चलने वाली सवारी गाड़ी 015-1 व 015-2 तथा 045-22 व 045-23 का सरस्वती नगर, बराड़ा व अन्य लोकल स्टेशनों पर ठहराव था, जो लॉकडाउन के समय में बंद कर दिया गया, जबकि अब सभी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज 100% मैन पावर से खुले हुए हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से निवेदन है कि इन जो कोरोना के समय में ट्रेन रुक गई थी उनको दोबारा चालू किया जाए। और माननीय अध्यक्ष जी, एक और चंडीगढ़ से रोहतक के लिए भिवानी एक एकता एक्सप्रेस चलती थी, उसको भी दोबारा चालू किया जाए ताकि कर्मचारियों को और लोगों को उसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अनुभव मोहंती जी। सर, थैंक यू सो मच सर। सर, आखिरी बार जब हमारे देश में सीजीएचएस का रेट स्लैब का रिवीजन हुआ था, वो था सर वर्ष 2014। और सर उस साल रिवीजन के वक्त में, रिवीजन के बाद सर फॉर इंडोर कंसल्टेशन 300 रुपए हुए थे मंजूर, और फॉर आउटडोर कंसल्टेशन 150 रुपए सर। लेकिन सर नॉट जस्ट फॉर द कंसल्टेशंस बट ऑल्सो फॉर द रेट्स ऑफ पॉपुलर प्रोसीजर्स, ये भी बहुत ही कम सर, वेरी वेरी लो है सर। फॉर ए नॉर्मल डिलीवरी, एक बच्चे की जब डिलीवरी होती है सर, तब सर सिर्फ 9,200 रुपए दिए जाते हैं टू नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स अंडर CGHS, which includes all the services of the hospitals as well. This is a very sharp contrast with the rupees 50,000 plus being charged currently in tier 1 cities from private patients.
सिमिलरली सर जब एक चेस्ट की एक्सरे होती है सर, उसमें भी सर 65 रुपए बस सीजीएचएस के अंडर में रेट स्लैब में आता है, जबकि इंस्टीट्यूशंस ये कहती हैं कि एक्सरे के लिए जो फिल्म जरूरत है, जो रॉ मटेरियल्स, वो भी इससे ज्यादा भाव में मिलती है। सर इवन डॉक्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया ये लोग भी कब से डिमांड कर रहे हैं कि नहीं इसका रिवीजन हो सीजीएचएस के अंडर में जो भी रेट स्लैब्स है। एंड सर विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दोज डॉक्टर्स, देयर आर फ्यू मोर डॉक्टर्स, few other doctors also, especially few super specialists, with due respect to them, have been refusing to provide services under CGHS due to low rates. This makes it further difficult for hospitals to keep confirming to provide services towards patients because the services are getting hampered. So delay in release of money, of funds from the central government under the CGHS scheme, ये बहुत ही ज्यादा दिक्कत कर रहा है, क्योंकि सर प्राइवेट हॉस्पिटल्स सीजीएचएस कार्ड होल्डर्स बेनिफिशियरीज को एंटरटेन करने के लिए तैयार ही नहीं है। पेशेंट सर एक अस्पताल से दूसरा अस्पताल दौड़ता रहता है, उसकी बीमारी इतनी बुरी हालत में वो होते हुए भी वो अस्पताल से अस्पताल दौड़ता है क्योंकि उसको बेनिफिट्स लेने हैं। बट अनफॉर्चुनेटली सर हॉस्पिटल्स आर डिनाइंग, सर दे आर इग्नोरिंग, रिजेक्टिंग अपॉइंटमेंट्स, और दे आर मेकिंग एक्सक्यूजेस लाइक अनअवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स टू सीजीएचएस बेनिफिशियरीज। In fact, CGHS beneficiary is seen with biased eye by them, like he or she is a beggar and can't be charged huge money. I hope with the increase in treatment rates, hospital will treat them without any disparity as well. It should be mandatory for all the hospitals, sir, in India. Sir, I'll finish, sir. It should be mandatory for all the hospitals in India to empanel themselves under CGHS. And I also suggest, sir, to set up a dedicated 24/7 panel hospital complaint cell to look into the matters of dispute between the patients and the panel hospitals. This will help in strengthening the quality of the services of the paid hospitals. Sir, एयर इंडिया के जो स्टाफ है सर, जब अभी तो प्राइवेटाइज्ड हो गया, पर इससे पहले जो एयर इंडिया के जो स्टाफ थे, जो रिटायर्ड स्टाफ्स, सर उनको भी सीजीएचएस के अंडर में इंक्लूड नहीं किया गया है। ऐसे कई सेक्टर्स, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लुक इनटू दिस मैटर as early as possible. Thank you, sir, for giving a chance to speak in the zero hour, sir. The central government started so many central universities, technical institutions in various states and union territories. These universities are specialized in so many areas. Even recently, our central government started the Central Technical University in Ladakh also. Pondicherry also having the Central University. But there is no reservation for the Pondicherry, not only the Pondicherry, Andaman Nicobar Islands, and Lakshadweep, there is no quota for the students. So, and moreover, that union territories not having any university of their own, the state government not having the university. So the students of the concerned union territories are totally affected. So I request the concerned minister to give the reservation for the union territory students, particularly Puducherry, Andaman, Nicobar Islands, even Ladakh also. They can give 25% of the reservation for the union territory students. Sir. Thank you, sir. श्री मनोज राजौरिया जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं आपके माध्यम से राजस्थान में एक बड़ी दुखद घटना के बारे में आपका ध्यान आकर्षण चाहता हूं और आपका संरक्षण चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र करौली धौलपुर के धौलपुर जिले के अंदर 15 मार्च की शाम को एक बेहद निंदनीय घटना हुई, जिसमें एक अनुसूचित जाति की महिला अपने पति और बच्चों के साथ में सरसों के खेत की कटाई करके अपने घर को लौट रही थी। रास्ते में कुछ बदमाशों ने बंदूक की नोक पर उस महिला के पति को मारा, पीटा और उसके सामने, उसके बच्चों के सामने उसको निवस्त किया और उसके साथ में बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। राजस्थान के अंदर ऐसी घटनाएं आम बात हो गई। पिछले 3 सालों के अंदर आप देखेंगे तो दलितों पर, महिलाओं पर और जिस तरीके से अत्याचार बढ़ रहे हैं, मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि कांग्रेस की एक नेत्री उत्तर प्रदेश के अंदर जाती हैं और कहती हैं कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। मैं उस नेत्री को भी ढूंढना चाहता हूं कि वह नेत्री राजस्थान की महिलाओं के ऊपर और विशेष तौर से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए भी लड़ने के लिए कब राजस्थान पहुंचेगी और कब मेरे धौलपुर में आकर उन महिलाओं की रक्षा के लिए आगे खड़ी होगी, या उत्तर प्रदेश में सिर्फ भाषण देने के लिए ऐसी। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जिस तरीके से राजस्थान बलात्कार की घटना के अंदर पूरे देश के अंदर नंबर 1 पर आज काबिज है और अपराधों की घटना राजस्थान में बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी सर आपसे संरक्षण चाहता हूं कि एक विशेष उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए जो राजस्थान में पिछले 3 वर्षों के दौरान
जो ऐसी बलात्कार की और अपराधों की घटना हुई है उसकी उच्च स्तरीय जांच करे और आपके सामने सदन के ऊपर सदन के पटल पर रखकर ऐसे अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। धन्यवाद। गोस्वामी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपके माध्यम से मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सदन में रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, रेलवे लाइन में पुराने काल में संपार फाटक हुआ करता था जिससे आवागमन चलते थे और रेल आती थी तो उसको बंद कर दिया जाता था। बाद में विकास के क्रम में जहां अधिक गाड़ियां चलती है वहां पर आरओबी बनाया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में आरयू भी बनाया जाता है जो रेलवे ट्रैक के नीचे से। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि आरयूबी का कॉन्सेप्ट जहां पर सुखार वाला एरिया वहां तो ठीक है, हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस रेल डिवीजन मेरा है, मेरा जोन है, वहां पर आरयूबी या तो फ्लड आने से आरयूबी में पानी घुस जाता है, वर्षा होने से आरयूबी में पानी चला जाता है और साल के 6 महीना 7 महीना आरयूबी में 3 फीट 4 फीट पानी रहता है। सर, एक आरयूबी बनाने में 75 लाख से लेकर के 1 करोड़ 20 लाख 25 लाख तक खर्चा होता है और हजारों आरयूबी फेलियर है। मेरे जिला में तो जितना बना है सब फेलियर है। इसीलिए आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि इस पर एक्सपर्ट से जांच कराइए और ये फेलियर आरयूबी के चलते लोगों का कम्युनिकेशन बंद है तो इस पर जांच करा करके इसको एक आधुनिक टेक्निक से कुछ बनाया जाए और जो लोग गलत कंसेप्ट दिया सरकार को फ्लड इफेक्ट और बरसात के एरिया में, ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। धन्यवाद। अन्नादुरई। Thank you, Honorable Speaker, sir. I used to draw kind attention of Honorable Minister of Communication towards weak BSNL network in Tirunnamalai and Tirupattur districts of Tamil Nadu causing lot of inconvenience. There is an immediate need for setting up adequate number of mobile towers of higher capacity by BSNL or by any other private parties on priority basis. Honorable Minister is requested to arrange for laying of mobile network with 4G facilities in Javadi Hills, Pudur Nadu Hills and Yelagiri Hills, which are inhabited by tribal people. Furthermore, there is urgent need for conversion of existing 2G, 3G mobile network into 4G and capacity enhancement of existing mobile net towers to enable smooth communication. Thank you, sir. श्री मलुक नागर जी। सब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया और खास करके पूरे देश के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जो तीनों बिल वापस लिए उससे तो खुश हैं, पर कोरोना कार्यकाल के समय में जो उनको उनकी सर्वे कराकर नुकसान की भरपाई नहीं हुई उससे, और जो गन्ने की पेमेंट आजकल रुक गई है उससे, और सब घंटे बस आधी मिनट में खत्म कर रहा हूं, और जो गन्ना खेतों में खड़ा हुआ है, मिल उनकी पर्चियां भेज नहीं रहे हैं, उस गन्ने को खरीद नहीं रहे हैं, वो लोकल मार्केट में बहुत मंदा बेचना पड़ेगा, यह खड़ा खड़ा सड़ जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं उनकी तुरंत रुकी हुई पेमेंट दिलवाएं और जो गन्ने खेतों में खड़े हैं उनको मिल के जो रेट हैं उस पर बिकवाने की व्यवस्था करें। धन्यवाद साहब। श्री जसवीर सिंह। धन्यवाद स्पीकर सर। सर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जो खाने पीने के तेल है उसकी बढ़ती कीमतों के तरफ दिलाना चाहता हूं सर। पिछले 2 साल में कुछ कारणों करके अनेक कारण है उसमें, जिसमें लगभग 2 गुना उसकी कीमत बढ़ गई है सर। मेरी आपके माध्यम से सरकार को गुजारिश है कि इस बार इसको कीमत, क्योंकि ये ज्यादा तेल बाहर से आता है और हमारा कीमती फॉरेन जो एक्सचेंज है, जो रिजर्व्स हैं, वो इसमें चले जाते हैं। मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से सरकार को कि पंजाब में सरसों का बहुत बढ़िया खेती होती है और सूरजमुखी की बहुत बढ़िया खेती होती है। कृपा करके इसकी जो एमएसपी है वो 5,000 रुपए प्रति क्विंटल की जाए, सरसों और की सरकारी खरीद जो इसकी सरसों की सरसों का भाव है अभी 7,000।
7,000 7,500 सर, सॉरी करेक्शन कर देता हूँ। तो उसकी सर सरकारी खरीद करवाई जाए जो है वो जो लोगों को जो तकलीफ ना हो। धन्यवाद सर। श्रीमती चिंता अनुराधा। Thank you, Speaker, sir. Since COVID-19 was specially notified as a disaster under India's Disaster Management Act, victims were guaranteed the right to compensation. Part 4 of the Constitution ensures socio-economic justice to the people and establishes India as a welfare state, sir. The ex gratia payment of 50,000 each to the relatives of every COVID-19 patient is a welfare gesture essential to a welfare state. The central government announced payment of compensation of Rs 50,000 to relatives of patients who died due to COVID-19, sir. There has been execution discrepancies in the process. Not just this, claims are rejected as victims were tested negative at the time of their death. As only time can heal the wounds of such a family's government ex gratia gesture can help people gain confidence in the welfare state, sir. As families were devastated by the deaths of loved ones, bread earners due to COVID-19, the government must increase the amount of compensation and must record reasons for claim rejection, and the government should boost the compensation process, sir. Thank you, sir. Shri G. Selvam Ji. Thank you, sir. Sir, Sansad Adas Gram Yojana. முன்மாதிரி கிராம திட்டத்தின் மூலம் ஒரு கிராமத்தை தேர்ந்தெடுத்து அடிப்படை தேவைகளை நிறைவேற்றக்கூடிய மருத்துவம், பொது சுகாதாரம், அனைத்து இணையதள வசதியும் கூடிய கல்விக்கூடங்கள், விவசாயம், கைத்தொழில் இந்த திட்டங்களை நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு நல்ல திட்டமாகும். ஆனால் இந்த திட்ட வடிவிலே இருக்கின்றது. இதற்கு முக்கிய காரணம் போதிய நிதி வசதி இல்லாத காரணத்தினால் ஒரு கிராமத்தை தேர்ந்தெடுக்கின்ற பொழுது அந்த கிராம மக்கள் மிகுந்த ஆர்வத்தோடும் எதிர்பார்ப்போடு இருக்கின்றார்கள். ஆனால் எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்ற முடியாத சூழ்நிலையில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சிரமத்திற்கு உள்ளாக்கப்படுகின்றோம். ஆகையால் ஒன்றிய அரசு இந்த திட்டத்திற்கு என்று ஒரு தனி நிதியை ஒதுக்கீடு செய்து இந்த திட்டத்தை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று இந்த அவையில் பதிவு செய்து விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். श्री अब्दुल खलीक जी। मौका देने के लिए धन्यवाद। आपके आभार व्यक्त करता हूं। देर रात तक सबके साथ मुझे भी मौका मिला। अध्यक्ष महोदय, मेरा जिला बरपेटा में द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में सरभोग में एक एयरपोर्ट, एक हवाई घाटी था, एक हवाई अड्डे था। जो स्वतंत्रता का संग्राम चला, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आजादी के सेनानी ब्रजनाथ शर्मा जी के नेतृत्व में वो हवाई अड्डे के कुछ नुकसान पहुंचाया। बाद में जो कटौती हुआ रिवर बैंक इरोशन, उसमें भी वो हवाई अड्डे का कुछ पोर्शन चला गया। आपके माध्यम से सरकार से, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से मेरा गुजारिश है, अगर वो हवाई अड्डे को रिवाइव कीजिए, और नहीं है, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो मैं रक्षा मंत्री जी से रिक्वेस्ट आग्रह करूंगा कि वो हवाई अड्डे जहां था उस पर एक वॉर मेमोरियल और ब्रजराज शर्मा के मेमोरियल वहां बनाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री हनुमान बेनीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर के नावा क्षेत्र में रेलवे द्वारा विशेष रेलवे ट्रैक के लिए जमीन अवाप्ति हेतु अवार्ड जारी कर देने उत्पन्न स्थिति के संबंध में ध्यान आकर्षित करते हुए ये बताना चाहता हूं कि नावा में नमक के लघु उद्योग लगे हुए हैं और यहाँ के नमक की गुणवत्ता विश्व प्रसिद्ध है और देश के कई राज्यों में यहाँ से नमक की सप्लाई होती है। अध्यक्ष महोदय, रेलवे के अधिकारियों ने मौका स्थिति देखे बिना ही नमक उद्योगों के क्षेत्र के मध्य विशेष रेलवे ट्रैक हेतु जमीन अवाप्ति के लिए अवार्ड जारी कर दिया। इससे न केवल 200 लघु उद्योग प्रभावित होंगे बल्कि विश्व विख्यात सांबर झील का स्वरूप भी प्रभावित होगा। इस झील में विदेशी साइबेरियन पक्षी आते हैं, यहाँ कैटलैंड वेटलैंड भूमि पर प्रजनन करते हैं, उनकी प्रजाति प्रभावित होगी। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूँ, वेटलैंड भूमि संरक्षित श्रेणी में आती है और एनजीटी कहती है कि ऐसी भूमि पर निर्माण नहीं किया जा सकता। ऐसे में रेलवे के किन जिम्मेदारों ने इस प्रकार के जमीन अवाप्ति का कोई अवार्ड जारी कर दिया, ये जांच का विषय। मेरा आपके माध्यम से मांग है कि रेल मंत्रालय कमेटी का गठन करके मौके पर भेजे और वहाँ के नमक उद्यमियों के साथ बैठक कर वस्तुस्थिति को समझे। सैकड़ों लघु नमक के उद्योग जो है उनको बचाने के समुचित कदम उठाए। कमेटी की रिपोर्ट जब तक नहीं आए तब तक अध्यक्ष महोदय रेलवे को पाबंद किया जाए कि वहाँ की किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं की जाए और प्रोजेक्ट को रिव्यू किया जाए तथा वहाँ कार्य कर नमक उद्योग जुड़े लोगों को मंशा का अनुरूप ही कार्य किया जाए। यदि वो नमक उद्योग से जुड़े लोग मुआवजे सहित अन्य मांगों को कमेटी के समक्ष रखते हैं तो उस पर भी सकारात्मक विचार सरकार करे। आप ये निर्देशित सरकार को करें। धन्यवाद। सभा की कार्रवाई मंगलवार 22 मार्च 2022 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।